Good morning, students. This is your lecture 13 of concrete technology. So, if you remember last class, we studied about gradation, right? We studied about grading. What was gradation? Gradation was the study of particle size distribution. And we studied about well-graded aggregates, poorly graded, gap-graded. So today we are going to study about sieve analysis. If you remember, we had studied here which method, the test of grading, yani ki gradation, is carried out by using which method? Sieve analysis method. So that's what we had studied. So gradation can be calculated. We can find out the gradation, yani ki the distribution of particle size of aggregates by which method? By sieve analysis method. So let us see what is sieve analysis. I'm sure you must have studied this in first year, but it will just be like a revision. So let us study again. Sieve analysis is conducted to determine the particle size distribution in an aggregate sample. Okay? तो sieve analysis क्यों करते हैं हम? ताकि हम particle size यानी कि अलग अलग of size of particle कैसे distributed है एग्रीगेट में वो फाइंड आउट करना है. या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी देखो आप लोग सब साथ में हैं, राइट? सब साथ में हैं अभी. तो अभी हमने बोला आपकी क्लास एग्जाम्पल लेते हैं क्लास में, ठीक है? अभी हमने बोला चलो हम साइज़ डिवाइड करते हैं, यानी कि जो जिसका वेट 30 to 35 है वो एक ग्रुप है, 35 to 40 जिसका वेट 35 to 40 kg वो दूसरा ग्रुप, 40 to 45 kg दूसरा ग्रुप, 45 to 50 अनदर ग्रुप, 50 to 55 अनदर ग्रुप. तो वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में आप लोगों को डालेंगे. बोले तो क्या होगा, हर एक ग्रुप में अलग अलग लोग आएंगे. 35 to 40 के बीच में कोई लोग आएंगे जिसका वेट कम है, 45 to 50, 70 to 75. ऐसे ही हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, अकॉर्डिंग टू वेट. So similarly, here in sieve analysis, we are going to distribute the aggregate according to its particle size, any size of particle. So usually aggregates used for making concrete are, sorry, this is not aggregate, okay? This is sieve. Let me write it here. Sieves used for, this is like the general sieves that are being used, okay? So the general sieves that are being used for making concrete are mainly 80 mm sieve, 40 mm sieve, 20 mm sieve, 10 mm sieve, 4.75, 2.36, 600 micron. I'm sorry, there are too many mistakes here. Let me just correct it. 200 micron, 300 micron and 150 micron. Anyways, how much is micron? 1 micron is equal to how much? You should really remember all this, okay? 1 micron, this is the symbol of micron, equals to 10 to the power of -6 millimeter. Okay, you should remember this. So these are usually the sieve sizes we use. I hope you know what is meant by 80 mm sieve. 80 mm sieve matlab ki if this is your sieve, okay, I am drawing the plan of the sieve like this. What do we have here? We have mesh. This is called mesh. The net which is formed on the sieve, it's called mesh, mesh. So this mesh, if we take one of this mesh out, okay, let's take one mesh out, one square. So the measurement of this mesh is equal to 80 mm. Okay, so therefore this will be called 80 mm. Similarly, 40 mm means the size of its mesh, one size of its mesh will be 40 mm. 20 mm, similarly the size of its mesh, like one box, will be 20 mm. Okay, similarly, so these are the most common sieve we use in order to sieve. Okay, so how do we sieve? Let us read.
Grading pattern of CA. CA is coarse aggregate, okay, and FA is fine aggregate. Grading pattern of coarse aggregate and fine aggregate is assessed by sieving a sample successively through all sieves mounted one over another. So first thing, how it is assessed, coarse aggregate and fine aggregates are assessed, yani ki means checked by sieving a sample successively through all the sieve. So how is it kept? It is kept successively. Let me show you here. Successively means the largest size of particle, yani ki the largest mesh, okay, the sieve with the largest mesh, yani ki the largest box, the largest net, it's kept at the top, and similarly it will go in descending order, and smaller than this mesh will be here, इससे भी small उसके नीचे, और small करके लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पैन रखते. पैन आपको पता होगा है ना. पैन इज द surface which has a no mesh, it has a plain surface at the bottom, उसमें कोई mesh नहीं, उसका बॉटम जो है सॉलिड है, एकदम सॉलिड. कैन यू सी हेयर, इसमें कोई mesh नहीं, एकदम सॉलिड है. पैन हम इसीलिए रखते हैं ताकि जो अब जब आप सीव करेंगे तो अब पैन सबसे नीचे है, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो पैन पे गिरने वाला है, तो वो तो ऑब्वियस बात है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एकदम छोटा होगा, यानी कि डस्ट ही होगा, है ना. तो डस्ट ही मतलब ऑब्वियसली अगर आप पैन बिना रखे करेंगे तो वो डस्ट उड़ सकते हैं और ऐसे ही प्लेसेस को डर्टी गंदा बनाएंगे, या फिर आप पर वो पूरे डस्ट आ सकते हैं, तो इसलिए हम पैन रखते हैं, ठीक है, इन दी एंड. So how are sieves arranged? Sieves are arranged in descending order, where the largest sieve with the largest mesh is kept at the top. Okay. Then let us read the second point. The material retained on each sieve after shaking represents the fraction of aggregate coarser than the present sieve on which it is retained. Now this part you need to understand. So before that let me explain how do we do sieve analysis. हमने अरेंज कर लिया अपना सीव, ठीक है, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट ऊपर रखा, स्मॉलेस्ट सबसे नीचे रखा. उसके बाद जो भी एग्रीगेट्स हमें सीव करना है, मतलब मानो 1 kg एग्रीगेट्स हमको सीव करना है, एग्जाम्पल 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, वो पूरा इसके अंदर लगा देंगे, फिर इसमें ढक्कन लगा देंगे, ठीक है, लिड लगाएंगे. अब पूरा कवर हो गया. अब ये पूरे सीव को हम शेक करेंगे, ठीक है. वी आर गोइंग टू शेक. एंड हाउ आर वी गोइंग टू शेक? नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, बट मिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी कि इट शुड बी लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल भी जानी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वर्टिकल भी जानी चाहिए. इट शुडंट बी लाइक दिस, इट शुडंट बी लाइक दिस, ओके, इट शुड बी थोड़ा लाइक दिस, लाइक सर्कुलर मोशन में, ओके, नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, सर्कुलर मोशन में जानी चाहिए. दैट्स हाउ यू शुड सी. सो एटलीस्ट यू शुड शेक द सीव फॉर लीस्ट ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, मिनिमम 10 मिनट्स उसको सीव करनी चाहिए. अब क्या होगा, उसके बाद हर एक सीव में आपका एग्रीगेट्स रिटेन्ड होगा. लर्न दिस वर्ड, रिटेन्ड, रिटेन्ड, RETAINED. व्हाट इज रिटेन्ड? रिटेन्ड मतलब जो पास नहीं होगा, मतलब ये अगर ये सीव से जो पास होगा वो तो पास हुआ, जो पास नहीं होगा, जो इसके ऊपर रहेगा, जो जैसे मानो इतना एग्रीगेट्स इसके ऊपर रहा, तो हम उसको बोलते हैं वो एग्रीगेट्स रिटेन्ड है, ठीक है. तो सिमिलरली अब आपने 10 मिनट तक उसको शेक किया, सीव किया, अब उसके बाद हम ढक्कन निकालेंगे और देखेंगे हर एक सीव में कितना कितना रिटेन हुआ है. यहाँ पर दिया है, देखो, अगर मानो ये सीव में इतना रिटेन हुआ, दूसरा इसके नीचे वाले में इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, तो ऐसे करके आपको रिटेन मिलेंगे. तो ये हर एक सीव में जो रिटेन हो रहा है, मानो ये एग्रीगेट, ये पार्टिकल जो यहाँ रिटेन हुआ, वो क्या दिखाता है? रीड दिस. द मटेरियल रिटेन्ड ऑन ईच सीव आफ्टर शेकिंग, ठीक है, जो भी मटेरियल रिटेन हुआ है अपने अपने सीव में आफ्टर शेकिंग, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट कोर्सर और लार्जर देन द प्रेजेंट सीव ऑन विच इट इज रिटेन्ड. तो व्हाट विल इट शो?
ये एग्रीगेट्स जो यहाँ रिटेन हुआ है, ठीक है, ये पहला वाला सीव, ये दिखाएंगे कि दिस एग्रीगेट्स आर लार्जर और कोर्सर देन दिस सीव साइज। फॉर एग्जाम्पल, मानो ये सीव साइज 20 mm था, एग्जाम्पल, ओके। तो जो भी एग्रीगेट्स ये 20 mm सीव में रिटेन हुआ, represents, this aggregate will represent that its size is larger, और हम कॉन्क्रीट में क्या बोलते हैं, कोर्सर, ठीक है, लार्जर और कोर्सर देन हाउ मच साइज, 20 mm। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब देखो इसका मेश का साइज़ 20 mm है। अब अगर ये एग्रीगेट्स पास नहीं हुआ, ये एग्रीगेट्स यही रिटेन हुआ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली वो एग्रीगेट्स 20 mm से बड़ा है उसका साइज़, इसीलिए वो पास नहीं किया, इसीलिए रिटर्न किया ना। तो similarly, let us see if this is 12.75 mm. Okay, this second wala is 12.75 mm सीव है। तो ये इतना एग्रीगेट यहाँ रिटेन किया, तो वो क्या दिखाएगा कि ये एग्रीगेट्स आर लार्जर और कोर्सर देन 12.75 mm। तो यही बोल रहा है, ठीक है। द मटेरियल जो रिटेन होगा ईच सीव में आफ्टर शेकिंग, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट विच इज़ कोर्सर और लार्जर देन द प्रेजेंट सीव ऑन विच इट इज़, ठीक है। तो जो भी एग्रीगेट्स रिटेन होगा अपने अपने सीव में, वो यही दिखाएगा कि वो एग्रीगेट उस सीव से साइज बड़ा है, और जो एग्रीगेट्स इसे पास करेगा वो क्या दिखाएगा, वो एग्रीगेट उस एग्रीगेट से छोटा है, ठीक है, वो सीव साइज से छोटा है, इसलिए वो नीचे गिरा। Now let us go to the very important word, very important topic, fineness modulus, ठीक है। अब फाइनेस मॉड्यूलस क्या है, अब हमने सीव एनालिसिस तो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम एक सीव एनालिसिस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, हम सीव एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम उसका फाइनेस मॉड्यूलस निकाल सकें, ठीक है। सो रीड द फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम सीव एनालिसिस fineness modulus can be obtained, okay, so we can find out the fineness modulus from sieve analysis. Now what is fineness modulus? I'll read the definition. It may not make sense for now, but when we do the numerical you obviously understand it better, okay. It is an empirical factor obtained, ठीक है, वो क्या है, एक empirical factor है जो obtain होगा, जो हमें मिलेंगे by एडिंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, यानी कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, तो जितना भी निकला सबको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऑन ईच स्टैंडर्ड सीव, हर एक सीव में जो भी क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज वेट रिटेन निकलेंगे, हम उसको सब ऐड करेंगे एंड उसको एंड डिवाइड द सम बाय आर्बिट्रेरी नंबर 100, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोर फाइनेस मॉड्यूलस, ठीक है। सो इट इज़ एन एम्पिरिकल फैक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, यानी कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन का सम जो है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100 number 100 will give you fineness modulus. Here I must see, this is, can you read this? This is, you can just concentrate on this formula, okay. So you can define your fineness modulus as this also. What is fineness modulus? It is the total sum, ठीक है, it is the sum, you can say it is the sum of total percentage cumulative weight retained divided by 100, हमें क्या मिलेगा, is your fineness modulus, okay. So I'll explain you how we took out that. For now let us know that fineness modulus क्या है. Larger the fineness modulus, coarser the material. Okay, so जितना बड़ा fineness modulus का वैल्यू आएगा उतना ही ज़्यादा आपका मटेरियल कोर्स होगा. कोर्स मतलब लार्ज होना, साइज लार्ज होना मतलब कोर्स, ठीक है. For fine aggregates it can be divided into, अब fine aggregates में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है. अगर आपके फाइनेस मॉड्यूलस का वैल्यू 2.2 to 2.6 के बीच में आया तो उसको हम फाइन सैंड बोलेंगे. 2.6 to 2.9 के बीच में आया तो मीडियम सैंड.
और 2.9 to 3.2 के बीच में आया तो कोर्स साउंड। और FM फाइनेस्ट मॉड्यूलस मोर देन 3.2 फॉर फाइन एग्रीगेट इट्स नॉट सूटेबल। और अगर 3.2 से भी ज़्यादा आया यानी कि मैक्सिमम 3.2 से भी ज़्यादा आया तो हम उसको नॉट सूटेबल कंसिडर करेंगे, एज अ फाइन एग्रीगेट के लिए वो सूटेबल नहीं है बोलेंगे। अब हम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं अपना CV एनालिसिस, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी and it is very interesting also, okay. So let us read the question. Find okay, and ये questions जो है मैंने पूरा निराली प्रकाशन का बुक से निकाला है, ठीक है। आप जिसके पास बुक है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर नाउ लेट अस सॉल्व 1-2 important न्यूमेरिकल्स, okay. Find fineness modulus of a sample of fine aggregate for following items, ठीक है। सो हम किसके फाइनेस्ट मॉड्यूलस निकालेंगे, फाइन एग्रीगेट्स। अब उसने दिया है, ठीक है, तो उन्होंने सीव यूज़ किया है, सीव साइज़। कौन कौन सा सीव साइज़ यूज़ किया है, 4.75 जो सबसे ऊपर होगा, फिर 2.36 उसका नीचे, 1.18 mm 2.36 के नीचे होगा, फिर उसके नीचे 600 माइक्रोन, ठीक है, 600 माइक्रोन होगा, और उसके नीचे 300 माइक्रोन होगा, और उसके नीचे 150 माइक्रोन, और उसके नीचे पैन, ठीक है। ऑल्सो गाइस ये 150 माइक्रोन को अगर यहाँ पर माइक्रोन दिया है तो उसको अगर उसको mm में करेंगे तो उसको 0.15 mm भी बोलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, वो दोनों दे सकते हैं, इधर 150 माइक्रोन बोल सकते हैं या फिर 0.15 mm बोल सकते हैं। सिमिलरली 300 माइक्रोन बोल सकता है या फिर क्या बोल सकते हैं 0.3 माइक्रोन बोल सकते हैं, या फिर यहाँ 600 माइक्रोन या फिर 0.6 माइक्रोन, सॉरी 0.6 mm, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ if you take out सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया था, आप प्लीज़ उसका करेक्शन कर लीजिए। इसमें मैंने 1 माइक्रोन इस 10 to the power -6 mm बोला था ना, ये mm नहीं 10 to the power 6 मीटर है, ठीक है, 10 to the power -6 मीटर। सिमिलरली you remember this, sorry I made a silly mistake, 1 micron equals to 10 to the power 6 मीटर, सॉरी 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। तो सिमिलरली इसीलिए हम 600 माइक्रोन को हम 0.6 भी बोल सकते हैं, और 300 माइक्रोन को 150 माइक्रोन को 0.15, 300 माइक्रोन को 0.3 mm भी बोल सकते हैं। अब देखो लेट अस सी, अब हर एक सीव हमने रख दिया, उसने सीव किया होगा, उसके बाद सीव करने के बाद उसमें रिटेन हुआ है, ठीक है। 4.75 में कितना रिटेन हुआ है, 14, 2.36 में 128, 1.18 में 266, सिमिलरली हर एक सीव में रिटेन हुआ है। तो हम पहले चीज़ क्या करेंगे, हम पहले यही सीव साइज़ जो हमने लिखा है उसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4.75 तो सबसे ऊपर रखेगा, ये सीव 4.75 जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर होंगे, उसके नीचे उसके छोटे, उससे भी छोटे, ऐसा स्मॉलर देन ईच सीव हम उसको अरेंज करेंगे। अब हर एक सीव में कितना रिटेन हुआ यानी कि कितना उसके ऊपर रहा वो लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिया है वही, जो इसके ऊपर दिया है हमने वही लिखा है, और जो यहाँ दिया है हमने ये यहाँ लिखा है। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड इन ग्राम। सो क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट मीन्स एडिशन। what does it mean, it means एडिशन। कोई भी चीज़ हम जोड़ के जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, लेकिन एक ही जोड़ना नहीं है। जैसे मानो 1 से 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 6 कितना हुआ 11, 11 + 3 14, 14 + 5 16। वैसे हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ जोड़ते जा रहे हैं, मतलब जोड़ते रहे कंटिन्यूस। तो क्यूमुलेटिव मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि वो कंटिन्यूसली जोड़ते जाएंगे, ठीक है।
तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड इन ग्राम मतलब, अब इसमें आपको क्या समझना है, सीव एनालिसिस में आपको क्यूमुलेटिव में क्या समझना है, आपको समझना है कि वहाँ तक कितना है, वहाँ तक कितना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझाऊंगी। 4.75 mm में कितना रिटर्न हुआ, 14 में, ठीक है। अब उसकी क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न कितना होगा, यानी कि आप इसको सीफ जैसे ले लेना, ठीक है। आप उसको कंसिडर करो कि ये सीफ है, आप क्या रिमेंबर करो, ये सीफ है, ठीक है। मैंने सीफ को अरेंज कर दिया ऐसे, मैंने सीफ को अरेंज कर दिया ऐसे। आप इमेजिन करो कि ये आपका सीव है, ठीक है, जो सबसे ऊपर सीव यहाँ है और सबसे नीचे यहाँ है। तो अगर 4.75 mm में 14 ग्राम रिटेन हुआ है, तो 4.75 mm तक 4.75 mm सीफ तक कितना एग्रीगेट्स है, 14 ग्राम ही है ना, यानी कि इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं है। तो इसमें 14, इसका भी 14 ही होगा। अब सेकेंड का देखते, 2.36 mm में कितना है, 128 ग्राम है। अब इसका क्यूमुलेटिव वेट कितना निकलेंगे, यानी कि 2.36 mm तक कितना रिटेन हुआ है, यानी कि 2.36 mm से लेकर उसके ऊपर तक कितना रिटेन हुआ। हम बस जब हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो हम बस 2.36 को नहीं देखेंगे, वहाँ तक कितना रिटेन हुआ है वो देखेंगे। तो देखो 2.36 mm में तो 128 ग्राम रिटेन हुआ है, और उसके ऊपर भी तो कुछ रिटेन हुआ है ना, तो कितना रिटेन हुआ है, 14। तो हम क्या करेंगे, 128 प्लस 14 ऐड करेंगे। या फिर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो 2.36 mm के ऊपर तक कितना रिटेन था, 14 है ना, 14 प्लस 128, यानी कि एक याद करने के लिए ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। तो 14 प्लस 128 कितना देगा, 142 ग्राम, यानी कि 2.36 mm सीफ तक कितना रिटेन हुआ है, 128 अपना, और उसके ऊपर 14, 128 प्लस 14 तो 142। सिमिलरली 1.18 के निकालेंगे, 1.18 mm में कितना रिटेन हुआ है, 266, तो 266। अब क्यूमुलेटिव वेट जब निकालेंगे तो 1.18 mm तक, यानी कि 1.18 mm से लेकर ऊपर तक, 1.18 mm से लेकर ऊपर तक कितना रिटेन हुआ है, वो हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो 1.8 mm में 266, उसके ऊपर 128, उसके ऊपर 14, तो इन तीनों का पूरा जो एडिशन होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये और ये, इन दोनों का जोड़ हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है, 142, यानी कि 14 प्लस 128 142 है। तो अब आपको क्या जोड़ना है, बस 142 प्लस 266 जोड़ना है। तो 142 प्लस 266 अगर आप जोड़ेंगे तो 408 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब एक्सप्लेनेशन भूल गया, आप कोई कंफ्यूज हो गया, आप कुछ भी भूल गया, आप मेरा एक्सप्लेनेशन भूल गए, तो बस इतना याद करो, ऐसे ऐड करना है, ठीक है। जो सबसे ऊपर है उसके नेक्स्ट कॉलम का जो नीचे है उसका ऐड, यानी कि A B C। सो C निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस B इक्वल्स टू C। तो ऐसे ऐसे याद करो, ये सिंबल याद करो, ठीक है। तो सिमिलरली अब 600 माइक्रोन का निकालेंगे, 600 माइक्रोन में कितना रिटेन हुआ है, 308। अब क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो क्या है, 600 माइक्रोन तक, यानी कि 600 माइक्रोन से ऊपर तक कितना रिटेन हुआ है। तो यहाँ 300 mm तो 600 में हुआ है, और बाकी 266, 128 और 14 इतना रिटेन हुआ है। हमें इन चार को ऐड करना है, लेकिन इन तीनों का एडिशन ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ हो चुका है, यहाँ 148 प्लस 128 प्लस 266 कितना है, 408। तो हमें इन तीनों को बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेम क्या करेंगे, 408 प्लस 308 करेंगे तो 716, यानी कि 600 माइक्रोन में अकेला 308 ग्राम एग्रीगेट्स है, लेकिन 608 माइक्रोन तक 600 माइक्रोन की क्यूमुलेटिव वेट निकालेंगे तो उसमें कितना हुआ है, 717, यानी कि 716 ग्राम रिटेन हुआ है।
सिमिलरली 300 का निकालेंगे, 300 अकेला में 300 माइक्रोन सिर्फ में 165 रिटेन हुआ है, और उसके क्यूमुलेटिव में कितना हुआ होगा 300 माइक्रोन से लेकर ऊपर तक, यानी कि 165 प्लस 308 प्लस 266 प्लस 128 प्लस 14, यानी कि ये पूरा ऐड करना है 165 से लेकर ऊपर तक। और हमको पता है इन चारों का एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, वो 716 है, तो सीधा 716 प्लस 165 करेंगे तो 881 है। तो वैसे ही आपको जोड़ते जाना है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ है, इम्पोर्टेंट पार्ट में दिखाती हूँ। इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ है, आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है, ठीक है। अब अभी आप ये देखो, अभी हम फाइन एग्रीगेट्स का सीव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एग्रीगेट सीव कर दिया, लेकिन अब ये नोटिस करो 150 माइक्रोन, यानी कि कितना mm है 0.15 mm, मतलब कि बहुत छोटा से छोटी है ना वो। अगर आप इसका सीव देखोगे तो ये बहुत छोटा है। तो यूजुअली जब हम फाइननेस मॉड्यूलस निकालेंगे किसका, फाइन एग्रीगेट का, तो जो भी वेट 150 माइक्रोन से नीचे आएंगे, ठीक है, जो भी वेट 150 माइक्रोन का नीचे है, जैसे फॉर एग्जांपल 150 माइक्रोन के नीचे पेन है, ठीक है, तो ये जो है ये बहुत माइन्यूट है, ठीक है, यानी कि वो बहुत छोटा पार्टिकल, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। यानी कि इस केस में हम पेन का वेट जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम पेन का वेट कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। We are not going to calculate cumulative percentage below 150। आपको क्या याद करना है, जब आप क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो आप 150 माइक्रोन के नीचे आप नहीं निकालेंगे, ठीक है, यानी कि पेन का हम नहीं निकालेंगे। तो इतना तक आपको समझ आ गया क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कैसे निकालते हैं। अब दूसरा हम जाएंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, ठीक है। अब उसमें हम क्या देखेंगे, अभी हमने क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकाला, अब उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले जानना है कि आपने टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स कितना लिया। वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेट रिटेन इन ग्राम है, ये पूरा को ऐड करना है, ठीक है, यानी कि 14 प्लस 128 प्लस 266 प्लस 308 प्लस 165 प्लस 84 प्लस 35। इसमें आप पेन में भी जो रिटेन हुआ है उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम टोटल वेट रिटेन निकालना है, यानी कि हमें ये जानना है कि आपने टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स कितना लिया। तो आपने 1000 ग्राम लिया, तो इसीलिए आपको सबका वेट ऐड करना है, पेन का भी वेट ऐड करना है। तो टोटल वेट कितना लिया 1000, ठीक है। अब हम निकाल पाएंगे अपना परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। वो कैसे निकालेंगे, अगर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन 4.75 mm में 14 ग्राम है, तो क्या करेंगे 14 ग्राम अपॉन टोटल वेट कितना है 1000, टोटल वेट 1000 है, ठीक है। हमें परसेंटेज में निकाल रहा है, तो हम इसको इंटू 100 करेंगे, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 0 0 कट, ये 2 0 कट होगा, तो क्या मिलेगा 14/10 विच इज़ इक्वल टू 1.4। तो ये 1.4% आपका ऐसे निकला, ठीक है। यानी कि 4.75 mm तक कितना रिटेन हुआ, 1.4% ऑफ टोटल एग्रीगेट्स रिटेन हुआ। सिमिलरली अब 2.36 के लिए कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव वेट 142 है, 142 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे तो 14.2 है। 408 भी वैसे ही निकालेंगे, 408 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 तो 40.8। ये 716 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 71.6। 881 भी 881 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करेगा तो 88.9। ऐसे ही करके हम सब के लिए परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा कंसेप्ट। अब ये निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड लेना है, ठीक है। और आप देखना, आप परसेंटेज क्यूमुलेटिव भी जब आप निकालोगे तो पेन के लिए नहीं निकालेंगे,
अब हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालने के लिए ये सब को ऐड करेंगे, ठीक है। 1.4 प्लस 14.2 प्लस 40.8 प्लस 71.6 प्लस 88.1 प्लस 96.5, वो कितना आएगा? आप कैलकुलेटर में करके देखना, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप करके देखना तो कितना आएगा, 312.6। अब फाइनेस मॉड्यूलस क्या बोलता है? फाइनेस मॉड्यूलस बोलता है टोटल परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना आया, 312 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आया, 3.1212। सो दिस इज योर फाइनेस मॉड्यूलस। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ भी निकालेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला वैसे आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रैक्टिस करना, बिना देखे करना। अब इसमें हमने फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड निकाला है, यहाँ भी सेम ही किया है। देखो सीव साइज लिया है 4.75, 2.36, 1.18, 0.6 सी। ओके, ये 0.6 mm है ना, इसका मतलब कितना माइक्रोन है, ये 600 माइक्रोन। ये 0.3 mm कितना है, 300 माइक्रोन। और 0.15 mm इज़ 150 माइक्रोन। इसमें वैसे भी आपको पैन नहीं दिया है, पैन नहीं दिया है तो अच्छी बात है, तो आपको पूरा निकालना है, ठीक है। आपको बस ये याद करना है, जब आप क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालोगे तो 0.15 mm या फिर 150 माइक्रोन के नीचे जो भी वैल्यू आएगा हम उसको इग्नोर कर देते हैं जब क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही निकालेंगे। देखो 4.75 में रिटेन 9 रिटेन है, ठीक है। और उसका क्यूमुलेटिव वेट कैसे निकालेंगे, इसका 9 ही आएगा। 2.36 mm में कितना आएगा, 9 प्लस 31.7 40 आएगा। अब 1.18 के लिए कैसे निकालेंगे, फिर 40.7 प्लस 119 तो 159। फिर 0.6 mm के लिए भी 159 प्लस 134 करो तो 294 आएगा, वैसे ही निकालना है। उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको ये पूरा ऐड करना है, ठीक है। यानी कि टोटल वेट रिटेन निकालना है। कितना आएगा, 9 प्लस 31.7 प्लस 119.2 प्लस 134.8 प्लस 106.3 प्लस 83.3, जितना भी टोटल आएगा, ठीक है। जो टोटल वेट आएगा उसको क्या करना है, फिर ये क्यूमुलेटिव वेट 9 आया तो 9 डिवाइडेड बाय ये टोटल वेट जो आएगा इनटू 100 करना है, तो आपका क्यूमुलेटिव वेट रिटेन आएगा। सिमिलरली ये निकालना सब, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब पूरा निकलेगा तो आपको सम ऑफ परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट यानी कि इसका सम, टोटल सम करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, सॉरी डिवाइडेड बाय 100 करना है, और आपका फाइनेस मॉड्यूलस आनी चाहिए 2.78। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। अब आपको एक नया वर्ड दिखेंगे यहाँ पर लास्ट कॉलम में, जो इसमें नहीं था, इसमें यहाँ तक ही था। कैलकुलेशन के लिए हमें परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन तक ही निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक ही निकालना है ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। लेकिन आपको एक नया कॉलम दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक नया कॉलम दिखा। इसको क्या बोल रहा है, परसेंटेज फाइनर, और वी इवन कॉल इट परसेंटेज पासिंग, ठीक है, परसेंटेज पासिंग, PASSING। तो ये परसेंटेज फाइनर या परसेंटेज पासिंग क्या है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द सेम थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर 4.75 mm में कितना परसेंट रिटेन हुआ है, 1. अब सेम थिंग ले लेना, ठीक है। इसको सीव करके लेना, ये 4.75 mm सीव है, इसको सीव लेना। सो इमेजिन करो कि ये सीव अरेंज करके रखा है। अगर 4.75 mm में कितना रिटेन हुआ है, 1.8% रिटेन हुआ है, यानी कि 1.8% एग्रीगेट यहाँ पर ही रिटेन हुआ है। तो कितना एग्रीगेट्स पास कर लिया, कितना परसेंटेज एफ एग्रीगेट पास किया, वो जानने के लिए क्या करेंगे आप, 100% माइनस 1.8 कर देंगे, है ना। यानी कि कितना आया, 98.2। यानी कि 4.75 mm सीव से 1.8
परसेंट तो रिटेन हुआ, बाकी बचा हुआ 98.2% एग्रीगेट्स क्या हुआ, पास किया। कहाँ से, 4.75 ठीक है। सिमिलरली 2.36 तक कितना रिटेन था, 8.1%, यानी कि 8.1%। और उसके नीचे कितना पास किया, अगर 8.1%, 2.36 तक 8.1% रिटेन हुआ, तो बाकी 100 माइनस 8.1 क्या हुआ, पास किया ना, तो इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो 100 माइनस 8.1 क्या देंगे हमें, 91.9, यानी कि 2.36 में 8.1% रिटेन हुआ और बाकी बचा हुआ 91.9% पास हुआ। ठीक है, तो ये परसेंटेज फाइनल हम कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज आया है हमारा उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज़ ऑब्वियस केस। ठीक है, मानो आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, आपने अगर उस चॉकलेट 100% पूरा फुल है, आपने 20% खा लिया है उसका चॉकलेट, तो बचा कितना, 80% बचा ना। सिमिलरली आपने 2 घंटे के बाद आपने मानो और 30% खाया, यानी कि 20 + 30, 50% आपने खा लिया, तो कितना बचा, 50% बचा, है ना। और आफ्टर 3 आवर्स आपने और 20% खाया, 20%, तो कितना खाया, 20 + 30 + 20, 70% खाया, तो कितना बचा, 30% बचा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे वही है, अगर 4.75 में 1.8% रिटेन किया, यानी कि वो पास नहीं किया, तो 98.2% पास कर लिया, 100 से सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली ओके, सिमिलरली ये सेम चीज़ किया है, 32% अगर रिटेन हुआ 1.18 में, तो 100 माइनस 32, 68% पास किया। तो ये फाइनल कैसे निकालते हैं हम, बस आपको 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी तक हमने फाइन एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है, फाइंड द फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगर आपको कोर्स एग्रीगेट का निकालना है, तो आप नोटिस कर लो, यहाँ पर नोटिस करो, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं। पहले देखो कितना छोटा छोटा था, 4.75 सीफ यूज़ कर रहे थे हम, सीफ साइज देखो छोटे छोटे यूज़ कर रहे थे, 4.75 2.36 1.18। अभी हम बड़े साइज सीव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम कोर्स एग्रीगेट को सीव कर रहे हैं, 40 20 25 12.5 10 4.75। तो इस केस में आपको क्या याद करना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे हमने फाइन एग्रीगेट में हमने 150 माइक्रोन तक किया था और पैन को इग्नोर किया था, सिमिलरली इसमें भी, ठीक है, जब हम कोर्स एग्रीगेट करते हैं तो हम इसमें भी 4.75 तक ही करते हैं और पैन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेट रिटेन निकालते हैं तब पैन को इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, ये याद रखना आप लोग, टोटल वेट रिटेन निकालते समय हम सबको जोड़ते हैं, पैन को भी जोड़ेंगे, लेकिन जब हम ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालेंगे तब हम, अगर यहाँ लिखना है तो लिखो, लेकिन जब जोड़ते समय जब हम ऐड करेंगे तो पैन का हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके रहना। पहले आप वेट रिटेन निकालो, फिर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन जैसे मैंने सिखाया था, 202 + 363 565 देगा, 565 + 441 1006 देगा, 1006 + 397 1406 देगा, तो वो निकालना पहले, ठीक है। क्यूमुलेटिव वेट रिटेन आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कैसे निकालेगा, ये 202 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये सबको जोड़ना है, ठीक है। 202 + 363 + 441 + 397 + 284 + 221 + 92, तो यहाँ दिया है टोटल वेट पे कितना आया, 2000, तो इसको 202 डिवाइडेड बाय 2000 करना है, इंटू 2000 इंटू क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 करो, तो क्या आ जाएगा आपका 10.1। सिमिलरली 565 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 करो, 28.25 आएगा। 1006 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 करो, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
इस फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने के लिए क्यूमुलेटिव वेट रिटेन को ऐड करना है, सम ऑफ। तो जब आप सम करेंगे तो आप ये जो मिला आपको 10.1 प्लस 28.25 प्लस 50.3 प्लस 70.15 प्लस 84.3 प्लस 95.4 तक ही करना है। ये 100 जो आया, जो पैन में आया, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इनका जितना टोटल आएगा, यहाँ टोटल आया 338, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय कितना करना है, 100। इसको डिवाइडेड बाय 100 करो, यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करो तो आपका आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ देखो आप, ठीक है। यहाँ दिया है कि फाइनेस्ट मॉडुलस कैसे निकालेगा, टोटल परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ऑन 0.15 नहीं 4.75 mm/c। तो आपको पूरा जोड़ना है, देखो 10.1 28 प्लस 50.3 70 84 95.5, यानी कि यहाँ तक ही जोड़ा है, ठीक है। ये 100 को नहीं जोड़ा है क्योंकि ये पैन में है 4.75 के नीचे, तो पैन को नहीं कंसिडर करना, यहाँ तक जोड़ना है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको फाइनेस्ट मॉडुलस मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे निकालना है आपको। उसके बाद ये आपको एक जनरल नॉलेज कर भी दिया है। अगर आपका मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट 20 mm यूज़ कर रहे हो तो फाइनेस्ट मॉडुलस 6 to 6.9 के बीच में आनी चाहिए। अगर 40 mm यूज़ कर रहे हो तो 6.9 to 7.5 mm, ठीक है। दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। So you can calculate the finest modulus of aggregate in this fine aggregate suitable for concrete, ठीक है। तो आप ये एक टेस्ट, एक असाइनमेंट करके आप इसका निकाल लेना, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। आज जितना भी न्यूमेरिकल्स मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। आप देख कर भी कर सकते हो, 2-3 न्यूमेरिकल करो प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है। So thank you for today's lecture. If you have any problem regarding this, let me know. I'll be there to help anytime. Thank you guys.